کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو، سارے عالم کو، ہمارے ملک کو، ہمارے ریاستوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اس وائرس سے ہم کو نجات دلائے، اور یہ اسی وقت ہوگا میرے عزیز دوستوں بزرگوں جب ہم گھر میں رہیں گے۔ میں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجھے بھی بڑی تکلیف۔ ناظرین السلام علیکم، IAD ٹوڈے کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کی طرف۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔ ریاستی حکومت نے آج کے جنتا کرفیو کے کامیاب ہونے پر 24 گھنٹوں کے لاک ڈاؤن کو 31 مارچ تک توسیع دے دینے کا اعلان کیا ہے۔ پرگتی بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ ریاست کی تمام سرحدیں بدستور بند رہیں گی تاکہ کرونا وائرس جیسی مہلک وبا پر قابو پایا جا سکے، اور اس کے لیے ایسا کرنا بے حد ضروری ہے۔ ریاستی حکومت نے اس سلسلے میں قانون امراض وبائی کے تحت اعلامیہ بھی جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ممالک سے آنے والے فلائٹس پر پابندی اور سمندری راستوں کو بند کر دینے کی وجہ سے اس وبا کے ملک اور ریاست میں داخلے کا خطرہ کم ہو گیا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ دودھ، ضروری اشیاء اور ترکاری وغیرہ شہریوں کے لیے دستیاب رہیں گی، اور ہر گھر سے ایک شخص کو خریدی کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 26 ہو گئی ہے، جبکہ آج 5 نئے کیسز کا پتہ چلا ہے۔ یہ تمام بیرونی ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، ان میں 2 دبئی سے، 2 لندن سے اور 1 اسکاٹ لینڈ سے واپس ہوا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ پڑوسی ریاستوں سے خانگی بسوں اور کاروں کو ریاست میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، البتہ ضروری اشیاء جیسے دودھ، ترکاری اور پھلوں کو لانے والی لاریوں کو داخل ہونے دیا جائے گا۔ یہاں بتانا ضروری ہوگا کہ آج صبح 6 بجے سے شروع ہونے والے جنتا کرفیو کے سبب پوری ریاست میں عام زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ اس کرفیو کے نفاذ کے لیے پولیس مشنری کا بھی بھرپور استعمال کیا گیا۔ حیدرآباد میں اس کا زبردست اثر دیکھا گیا، تمام سڑکیں سنسان اور ویران دکھائی دے رہی تھی۔ بیشتر مساجد میں مصلیوں کی تعداد بھی بہت کم دیکھی گئی۔ اسی دوران مرکزی حکومت نے تلنگانہ کے 5 اضلاع کو کرونا وائرس کے لیے انتہائی حساس قرار دیا ہے۔ ان میں حیدرآباد، رنگاریڈی، سنگاریڈی، ملکاجگیری میڈچل اور بھدرادری کوتگلم شامل ہیں۔ میں آج تلنگانہ جنتا کو میرے اور سے، سرکار کے اور سے دھنیواد دیتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے کاریکرم کی سفلتا 100 کے 100% سکسیس بنایا۔ میں ان کو بہت بہت آبھاری ہوں، دھنیواد دیتا ہوں۔ اسی پرکار سے آج سے ہمارے کو انٹرنیشنل فلائٹس بند ہو گئے، پورے پورٹس بھی کلوز ہو گئے۔ انٹرنیشنلی آنے والے یاتری اب ہمارے راج میں نہیں آئیں گے، تو ہم اس سے بچ گئے، وہ پیڑا سے ہم آج بچ گئے۔ اب اندر جو ہے، جو آئے ہوئے لوگ ہیں، ان سے ہم کو بچا لینا ہے، یہ بیماری نہ پھیلے، یہ قدم سرکار لے رہی ہے۔ اسی لیے 31 مارچ تک اس لاک آؤٹ کو پورے راجیہ بھر میں ہم لوگ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ آج جس پرکار سے جنتا نے سہیوگ دیا ہے، نینترن کیا ہے، اپنے آپ کو نمنترن میں رکھا ہے، گھر کو سیمت کیا ہے، اسی پرکار سے ایک اور ہفتہ آپ گھر میں ہی سیمت رہے، 5 لوگوں سے زیادہ باہر نہیں آ سکتے۔ سویدھاؤں کے لیے جو دینا چاہیے وہ پورے بندوبست ہمارے سرکار کی طرف سے پوری اپلبدھیاں ہوں گے۔ ایسینشیل کموڈیٹیز بھی، ہیلتھ سروسز بھی، ایمرجنسی سروسز بھی، جو کچھ بھی چاہیے وہ پورے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو کوئی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غریب جنتا کے لیے جو ہمارے پاس 87 لاکھ کے اوپر وائٹ ریشن کارڈ ہے، ان کے سویدھا کے لیے ایک 12 کلو چاول اور ایک 1500 روپے ایک مہینے کا ریشن جو ہے ان کو فری میں، مفت میں دیا جا رہا ہے۔ ویسے سبھی لوگوں کو کچھ ہی دنوں میں، اگلا 2-4 دنوں میں، 5 دن کے اندر سبھی کو پہنچا دیا جائے گا۔ جو ڈیلر ویوستھا ہے ہمارا، وہ پکا ویوستھا ہے، PDS ویوستھا، اس ویوستھا کے ذریعے پہنچائیں گے۔ جہاں ضرورت پڑتا ہے اربن ایریاز میں، وہاں تھوڑا GHMC سے یا بلدیہ سے بھی ہم سہیوگ لیں گے، کسی بھی ایک پرکار سے یہ پورا ان کے ہاتھ پہنچا دیں گے۔ ان کے ایڈریسز، پورے ریشن کارڈ کا پورا ہمارے پاس ڈیٹیل ہے، لہذا ان تک وہ بات پہنچا دیں گے۔ اس فیسلٹی کو لے کے پبلک گھر کو سیمت رہے اور اپنے آپ کو بچا لے، سماج کو بھی بچائے۔ آندھرا پردیش میں بھی جنتا کرفیو کو 31 مارچ تک توسیع دے دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی نے کہا کہ اگرچہ کہ وزیراعظم نریندر مودی نے 22 مارچ کو صبح 7 بجے سے 9 بجے شب تک عوام کو گھروں میں رہنے اور تمام کاروبار بند رکھنے کی اپیل کی تھی، لیکن اس وبائی مرض کی شدت کو دیکھتے ہوئے ریاستی حکومت نے لاک ڈاؤن کی مدت کو بڑھا دیا ہے۔
उन्होंने आवाम से अपील की कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें और इस मर्ज से मुकाबला करने में मदद करें। मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश के 3 अजला प्रकाशम, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम की कोरोना वायरस के सबब हसास होने की हैसियत से निशानदेही की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना में जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाने पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद दी है। उन्होंने फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि वो तेलंगाना हुकूमत के जज्बे की कदर करते हैं और सिताइश के बगैर नहीं रह सकते। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना पूरे मुल्क में एक मिसाली रियासत साबित हुई है। रचागुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा है कि उनके हुदूद में जनता कर्फ्यू पर जबरदस्त और मुस्बित रद्दअमल देखा गया। अवाम ने हुकूमत के अपील पर हुक्काम के साथ ताउन किया और इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि हुकूमत के इकदाम से अगरचे के अवाम को कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ा है, लेकिन अवाम के मफाद में किए गए हर इकदाम की तायीद की जानी चाहिए। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 5 हो गई है, जबकि इससे मुतासर होने वालों की तादाद 324 तक जा पहुंची है। डायलिसिस का एक मरीज कल दिल्ली के राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में फौत हो गया। उसके तिबी मायने आज वसूल हुए, जिसमें साबित हुआ कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर था। शहर की मुख्तलिफ कॉलोनियों और मोहल्ले की कमेटियों ने आज जनता कर्फ्यू के दौरान अपने अपने इलाके के बुजुर्ग और उम्र रसीदा अफराद की दाद रसाई की और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। जिन लोगों को ज़रूरी अशिया दरकार थी उन्हें फराहम करने का भी काम अंजाम दिया। यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी BT श्रीनिवास ने शहरियों से अपील की कि वो अपने अपने मुतालिका महलों में उम्र रसीदा अफराद की दाद रसाई करें। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इतवार के रोज तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली के रूबरू जनता कर्फ्यू के इंतजामात के ताल्लुक से मीडिया से बातचीत की। हेलो जी, रेडी साहब, रेडी साहब। हमारे CM साहब के अपील के बाद आज सुबह 6 बजे से हैदराबाद में जनता कर्फ्यू शुरू हुआ। इस तरह का पब्लिक कोऑपरेशन, पब्लिक रियलाइजेशन, पब्लिक अवेयरनेस शायद इस देश के हिस्ट्री में आज तक पहले कभी नहीं देखा गया। हैदराबाद के सभी इम्पोर्टेंट जंक्शंस पे जहां हमारे ट्रैफिक पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के सभी लोग मौजूद हैं और जो रिपोर्ट मिली है कि 99% लोग घर के अंदर हैं। कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस को डिफीट करने के लिए जो एक बैटल हमारे CM साहब के लीडरशिप में तेलंगाना स्टेट में चल रहा है और जिसमें हमारे सभी डिपार्टमेंट, GHMC, हेल्थ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट 24 आवर्स आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो पब्लिक के लिए बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि ऐसा एक अवेयरनेस का नमूना आप लोगों ने दिखाया है, जिसको कि कोविड-19 वायरस को डिफीट करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के सामने हैदराबाद एक मिसाल पेश करेगा। अभी हमारे GHMC कमिश्नर साहब ने बताया कि बाहर से जितने फॉरेन रिटर्नीज आ रहे हैं, हर की चेकिंग हो रही है, सबको हाउस क्वारंटाइन में रखा जा रहा है और जहां किसी में सिम्टम दिखता है उनको बताए हुए तरीके से चेकअप करके प्रॉपर क्वारंटाइन सेंटर में भी ले जाया जा रहा है। तो आप लोग से भी गुजारिश है कि घर के अंदर रहें, जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का एक फॉर्मूला है सेफ्टी का, उसको बरकरार रखें और 24 आवर्स ये जनता कर्फ्यू को सक्सेसफुल करें। आज सुबह कुछ इसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के, जैसे कि मिल्क सप्लाई या कुछ लोगों को हॉस्पिटल जाना था, मेडिकल चेकअप इम्पॉर्टेंट है उसके लिए जाना था, इसके अलावा बाकी सभी इस्टेब्लिशमेंट्स बंद हैं और अगले 24 आवर्स तक बंद रहेंगी। कल हमारे रिलीजियस लीडर्स भी, गुरुद्वारा के कुछ लीडर्स, चर्च के कुछ पास्टर्स, ओल्ड सिटी के मौलाना, सब लोग भी आए थे, हिंदू पुजारी भी आए थे। उन्होंने भी अपील की है कि जो भी प्रेयर, इबादत
जो भी करना है घर के अंदर से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये एक ऐसा लड़ाई है जो हम लोग सब मिलकर इसको लड़ना है और इसमें पूरे 1 करोड़ हैदराबाद के पब्लिक का सपोर्ट होना है। हम लोग मिलकर इसको जरूर हराएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हैदराबाद शहर और तेलंगाना स्टेट, एक बार जब डिटर्मिनेशन हम लोग करते हैं तो हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। थैंक यू। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचाराम श्रीनिवास ने अपने अरकान खानदान के साथ जनता कर्फ्यू के तहत इतवार के रोज अपने मकान में ही वक्त बिताया। पोचाराम श्रीनिवास ने बताया कि पीएम मोदी और सीएम केसीआर की तरफ से ऐलान करदा 24 घंटे का जनता कर्फ्यू कामयाब रहा। जनता कर्फ्यू की वजह से गरीब लोगों को खाना मयस्सर होना मुश्किल हो रहा है। अगर कोई भूखा किसी को नजर आए तो उसे मोहम्मद आसिफ हुसैन सोहेल के घर भेज दें। सूर्यनगर टोली चौकी के समाजी कारकुन आसिफ सोहेल के घर में रोजाना दोपहर 2 बजे से 3 बजे गरीब अवाम को मुफ्त खाना खिलाया जाता है। तफसीलात के लिए आसिफ हुसैन सोहेल से 9885178688 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। उनका नंबर है 9885178688। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उन मुमताज शख्सियतों में शामिल थे जिन्होंने आज शाम ठीक 5 बजे कोरोना वायरस से निपटने और हंगामी खिदमत अंजाम देने वाले तिब्बी अमले और दूसरी एजेंसियों की सितारिश करते हुए तालियां बजाईं। गवर्नर सुंदरराजन अपने स्टाफ के हमरा राजभवन के बाहर आ गईं और तालियां बजाने लगीं, जबकि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, उनके काबीना रुफ़ा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी एम महेंदर रेड्डी और चीफ मिनिस्टर के स्टाफ ने भी प्रगति भवन से बाहर निकलकर तालियां बजाईं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी अमरावती में अपने घर से बाहर निकले और तालियां बजाईं। इस मौके पर उनके काबीना रुफ़ा और आला अहदेदार भी मौजूद थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस की वबा की वजह से मुल्क के माली निज़ाम पर पड़ने वाले बुरे असरात को कम करने एक वार रूम कायम किया है ताकि रकमी मामलातों को बेहतर अंदाज में जारी रखा जा सके। दूसरी आलमी जंग के दौरान भी जब सारी दुनिया एक बहरान से गुजर रही थी, ऐसा नहीं किया गया। इस वार रूम में 90 अफराद काम करेंगे जो मईशत की पूरी सूरत हाल पर नजर रखेंगे। मशहूर फिल्म स्टार सलमान खान ने आज अपने चाहने वालों से कहा है कि वो कोरोना वायरस को संजीदगी से लें और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत के साथ ताउन करने की भी अपील की। 54 साल फिल्मी अदाकारा ने कोरोना वायरस से मुकाबला करने वाले तिब्बी अमले की खिदमत की जबरदस्त सितारिश की। उन्होंने आवाम से कहा कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही उन पर यकीन करें। इंडियन रेलवेज ने आज मुल्क भर में तमाम पैसेंजर ट्रेनों को 31 मार्च तक मनसूख कर देने का ऐलान किया है। इस तरह तमाम तवील मसाफती एक्सप्रेस, मेल और इंटरसिटी ट्रेनें भी 31 मार्च तक मनसूख रहेंगी। रेलवे के जराये के मुताबिक 22 मार्च को सुबह 4 बजे जो ट्रेनें निकली हैं वो अपने मंजिल तक बहर सूरत पहुंच जाएंगी। तमाम जोनल ऑफिसों से कहा गया है कि वो ट्रेनों की मनसूखी के फैसले पर सख्ती के साथ अमल करें। जिन ट्रेनों को मनसूख किया गया है उनके मुसाफिरीन 21 जून तक अपनी रकम वापस ले सकेंगे। स्पेन की बास्केटबॉल टीम रियल मैड्रिड के साबिक सदर लॉरेंजो साइंस की कोरोना वायरस के सबब आज मौत हो गई। वो खांसी और बुखार की शिकायत पर घर पर ही जेर इलाज थे। 76 साल लॉरेंजो साइंस के फर्जंद, जो खुद भी रियल मैड्रिड के बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, अपने वालिद की मौत की इत्तला दी। उन्होंने बताया कि उनके वालिद को शदीद बुखार पर दवाखाने में भी शरीक करवाया गया था, जहां उनमें कोरोना वायरस पाया गया। लॉरेंजो साइंस 1995 से 2000 तक रियल मैड्रिड बास्केटबॉल टीम के सदर रहे। मल्लेपल्ली मस्जिद के इलाके में शहरियों ने आज शाम 5 बजे तालियां बजाकर कोरोना वायरस से निपटने के काम में मसरूफ डॉक्टरों, तिब्बी अमले और दूसरी एजेंसियों से वाबस्ता अफराद की हौसला अफजाई की। जामा मस्जिद मल्लेपल्ली की कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम, इंस्पेक्टर हबीब नगर शिवा चंदर, एडिटर रोजनामा अंगारे खदीर फारूकी और दूसरों ने प्ले कार्ड डिस्प्ले करते हुए इस मर्ज के बारे में आवाम का शऊर बेदार किया। खदीर फारूकी ने शहरियों से अपील की कि वो लोगों से मेल जोल में एहतियात बरतें और साफ सफाई का खास ख्याल रखें।
जनता कोरोना के वास्ते जो आज कर्फ्यू लगाए हैं, जनता कर्फ्यू, हर कोई जो है इससे एहतियात करते हुए जो है आज नहीं निकले हैं, वो पब्लिक का शुक्रिया। और घरों में बैठ के जो है दुआ करते रहिए, ये बहुत बड़ी आफत से अल्लाह हमारे को बचाए। और इसमें कोई जात पात नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के जो है गिड़गिड़ा के दुआ करें। ये सेकंड फेज में है बोल के सुनने में आ रहा, ये थर्ड फेज में दाखिल नहीं हुए जैसा। हर कोई मिलकर साथ दीजिए और गैदरिंग ज़्यादा से ज़्यादा कतई गैदरिंग मत करिए, और जैसा कानून बोल रहा है वैसा कानून के हिसाब से चलिए। हर आवाम से मेरी यही अपील है कि इससे बेहिसाब बचना है, बेहद बचना है इससे। और नमाज़ों को जो है आना और नमाज़ों के लिए दुआ करना, नमाज़ों में दुआ करना, आप लोगों से सबसे मेरी अपील है कि आप लोग जो है सब इससे एहतियात करिए। हाथ मिलाने से एहतियात करिए, हाथ मिलाते ही धो दीजिए, और जितना टीवियों पे बता रहे हैं उस पर अमल करिए। इंशाल्लाह ये मर्ज जहाँ का वहीं ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। आजकल के हालात जो चल रहे हैं कोरोना के बारे में, तो कोरोना के लिए जो आज जो कराया गया है तो इसमें जो है सब लोगों को साथ देना चाहिए। इंशाल्लाह जो है आगे अगर सब लोग पब्लिक ऐसी साथ दी तो जो है इंशाल्लाह जो है गो करोना बोल के जो है जो नारे लगा रहे हैं इसमें जो है, तो इंशाल्लाह जो है मस्जिदों में दुआएं वगैरह भी कर रहे हैं इसके लिए। तो जो है आप लोग सब जो है साथ दिए तो इंशाल्लाह जो है घरों में जो है एहतियात करिए, सब बाहर निकलने से भी एहतियात करिए। ये अभी 31 तक इंशाल्लाह जो है हमारे CM साहब 31 मार्च तक जो है प्रोग्राम जो है पूरा करने वाले हैं, तो पूरा कैंसर तो 31 तक ये रहेगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो है आप लोग जब तक जो है सब एहतियात करिए, कानून के हिसाब से कानून जो भी बोलेगा वो सब पे अमल कीजिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। गैर मुस्लिम को भी मुतासर कर रहा है, बल्कि पूरी इंसानियत को मुतासर कर रहा है। इसीलिए जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि एक इंसान की जान बचाना पूरी दुनिया के इंसानों की जान के बराबर है। और वही कुरान करीम के अल्लाह के उस इरशाद मुबारक को हमको सामने रखकर हमारी ज़िंदगी के अब ये जो फ़ैसले हैं लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको अपनी जानों को बचाना है, हमारे भारत के दीगर अबनाए वतन की जान को बचाना है। इसीलिए इस लॉकडाउन के फ़ैसले को हम तमाम को कबूल करने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि मस्जिद को जाना चाहिए, मस्जिद को बंद करना चाहिए। ये फ़ैसला मैं चाहूँगा कि हमारे मुल्क के, हमारे वतन अज़ीज़ के तमाम मुफ्तिया इकराम वो बैठें, फ़ैसला लें और हम तमाम को अपने उस फ़ैसले से आगाह करें। चाहे वो देवबंदी मसलक के हों मुफ्तिया इकराम, बरेलवी मसलक के हों, अहले हदीस के हों, या किसी भी शाफ़ाई मसलक के हों या हम्बली मसलक के हों। मेरी उन तमाम से, हमारे उलमा इकराम से, ख़ास तौर से मुफ्ती इकराम से गुजारिश है कि आप इस बात का नोट लें और इसका फ़ैसला लें और आप हमको इससे आगाह करें। तीसरी बात मैं आप तमाम से अपील करना चाहूँगा कि अभी तक जो उलमा इकराम ने जो फ़ैसला लिया है वो ये है कि आप अपनी मुकामी मस्जिद को जब जाएंगे, अगर आप मस्जिद को जाना ज़रूरी समझते हैं ऐसे वायरस के माहौल में, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने घर से वज़ू करके जाएं। दूसरा, आप मस्जिद में नमाज फ़र्ज़ अदा करें सिर्फ, और फ़ौरन अपने घर को वापस आकर सुन्नतें और नफिल को अदा करें।
تیسری بات یہ ہے کہ مسجد میں ایئر کنڈیشن کو استعمال نہ کرے. ڈاکٹرز اور ماہرین نے کہا کہ ایئر کنڈیشن کے استعمال سے بھی وائرس تیزی سے پہنچتا ہے. کوشش یہ کریے کہ مسجد میں اگر ونڈوز ہیں، کھڑکیاں ہیں، اس کو کھولیے تاکہ ہوا اس میں آئے اور یہ جراثیم کا خاتمہ ہو سکے. پانچویں بات یہ ہے کہ اپنے مسجد میں اگر کارپیٹ بچھا ہوا ہے اور آپ اس کارپیٹ کو نکال سکتے ہیں تو اس کارپیٹ کو نکالیے. ایک پتھر کے اوپر، صاف پتھر کے اوپر آپ نماز پڑھیے. اور مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داروں سے میری گزارش ہے کہ ہر نماز کے بعد اس پتھر کو ڈس انفیکٹنٹ ڈال کر صاف کریں. یہ احتیاطی تدابیر آپ تمام کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے. جمعے کی نماز کے تعلق سے پھر سے میں اپیل کروں گا ہمارے ملک کے معزز مفتیہ اکرام کو کہ وہ اس حالات میں ایک فیصلہ لے کر ہم کو آگاہ کریں. اگر جمعے کی نماز کو آپ جا رہے ہیں تو کوشش یہ کریے کہ میں مسجد کے انتظامیہ سے ہم نے حیدرآباد میں گزارش کی، تمام لوگوں نے گزارش کی، الحمدللہ اس پر عمل بھی ہوا. آپ جمعے کے سے پہلے جو آپ کا بیان ہوتا ہے آپ اس کو کم کر دیجئے یا نہ دیجئے، خطبہ دیجئے، نماز ہو اور فوراً آپ لوگ اپنے گھر کو روانہ ہو جائیے اور اپنے گھر کو جا کر سنتیں اور نوافل کو ادا کریے. آخری بات یہ ہے کہ جو حضرات مسجد کو نہیں جا رہے ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو میری آپ سے اپیل ہے کہ نماز تو پڑھنا ضروری ہے، نماز فرض ہم پر ہے. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھیے. الحمدللہ آپ کے گھر میں بھی برکتیں رہیں گی اور ہم اس وائرس کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر پائیں گے. بہت سے لوگ مسلمانوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم اس وائرس سے کیوں ڈریں. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے اور ہم تمام کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مگر آپ اور ہم نہیں جانتے کہ آپ کی اور میری موت کب آنے والی ہے. آئے گی ضرور، وہ اللہ جانتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، یاد رکھیے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر پلیگ ہوتا ہے آپ وہاں پر مت جائیے، اور جہاں پر پلیگ ہے وہاں کے لوگ وہاں سے نکل کر کسی اور مقام پر مت جائیے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر پلیگ ہوتا ہے وہاں پر اس مقام، اس شہر میں مت جائیے، اور جو لوگ جہاں پر پلیگ ہے وہ وہاں سے نکل کر کسی اور مقام پر مت جائیے. یہ کیا پیغام ہم کو مل رہا ہے؟ علماء اکرام نے ہم کو بتایا کہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ یا دور رکھو اپنے آپ کو. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا؟ آقا نے فرمایا کہ جو بیمار ہوتے ہیں ان کو صحت مند سے علیحدہ رکھیے. کیا اس میں ہم کو نہیں بتایا گیا کہ جو صحت مند ہیں ان کو بیمار سے دور رکھیے، اس لیے کہ جو صحت مند ہے ان کو اس بیماری سے بچایا جا سکے. تیسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ مجھ سے کئی سوال کے نوجوان کہ خطر اللہ ہے، ہم کیوں ڈریں اس وائرس سے. میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، میری زدہ اور ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جو میں نے معزز علماء اکرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنی اور میں نے پڑھا بھی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کو دیکھا جو اپنے اونٹ کو نہیں باندھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو کیوں نہیں باندھتے؟ تو اس بدو نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کہا کہ خطر اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی روشنی میں ان تمام چیزوں کو، اس وائرس کو روکنے کے لیے
तमाम एहतियाती तदाबीर को हमको इस्तेमाल करना है। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मगर मैं जो आलिम दीन को जानता हूँ, मैंने उनकी ज़बान मुबारक से ये बातें सुनी जो मैं आज आपके सामने उसको रखने का मुझे मौका अल्लाह सुब्हाना व तआला दे रहा है। पांचवी बात इस सिलसिले में ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़ारूक़ आज़म का वज़ीम क़िस्सा, फ़ारूक़ आज़म हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अज़ीम क़िस्सा, वो वाक़या कि फ़ारूक़ आज़म जा रहे हैं और किसी ने कहा कि फ़ारूक़ आज़म जिस मुकाम पर आप जा रहे हैं वहाँ पर प्लेग है। तो फ़ारूक़ आज़म ने मशवरा किया अंसार से, मुहाजिरीन से और सहाबा से, और उसके बाद ये फ़ैसला लिया कि वहाँ पर नहीं जाएंगे। किसी एक सहाबी ने कहा कि क्या फ़ारूक़ आज़म आप क़दर अल्लाह से डर गए? तो फ़ारूक़ आज़म ने इरशाद फरमाया कि नहीं, मैं एक क़दर अल्लाह से दूसरे क़दर अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ। और एक और बात मैं हमारे नौजवानों को, हमारे बुज़ुर्गों को बताना चाहूँगा कि मैंने उलमा इकराम की ज़बान मुबारक से ये भी सुना है कि जब जंग हुई थी रोम के लोगों के साथ, और उलमा इकराम ने फरमाया कि उस वक्त भी एक प्लेग हुआ था जिसको ताऊन अमारुस के नाम से जाना जाता है। 1000 सहाबी शहीद हो गए उस प्लेग में। कौन शहीद है उसमें प्लेग में जो सहाबी शहीद हुए, जिनका विसाल हुआ, उनका नाम अबू उबैदा बिन जर्रा। ये कौन है अबू उबैदा बिन जर्रा? ये अशरे मुबश्शरा हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दी। अबू उबैदा बिन जर्रा इस प्लेग का शिकार हुए और उनका विसाल हुआ। फिर माज बिन जबल, इसीलिए आप देखते हैं कि अब जो मौजूदा सीरिया से लेकर फ़लस्तीन है वहाँ पर कई सहाबा इकराम की मज़ारें हैं। इसके बाद एक सहाबी रसूल ने, हज़रत अमर बिन आस ने मुसलमानों की फ़ौज की कमांड ली और उन्होंने क्या हुक्म दिया? उन्होंने हुक्म दिया कि पहाड़ों में और वादियों में फैल जाओ क्योंकि प्लेग आग की तरह जलाता है। एक शख्स उठा और अमर बिन आस से कहा कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप जो फैसला ले रहे हैं वो मेरे गधे से भी कमतर फैसला आपने लिया। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया और कहा कि मैं तुम्हारी इस बात का जवाब देकर तुम्हारी इस बात को इज्जत नहीं देना चाहता। और उनका फैसला सही साबित हुआ, प्लेग से तमाम लोग बच गए। और अमर बिन आस के इस फैसले के खिलाफ कौन थे खलीफा? हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने इस फैसले पर कुछ नहीं कहा। तो इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप तमाम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करिए। आपकी जान बचाना, इंसानियत की जान बचाना हम तमाम का ये अवलीन फरीज़ा है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। आज इस वायरस का, इस कोविड-19 का शिकार पूरी इंसानियत है, पूरे दुनिया के ममालिक हैं। और यकीनन मैं मानता हूँ कि हमको अल्लाह से भीख मांगना है, हमको अल्लाह को राज़ी करना है। जैसा कि किसी एक अल्लाह वाले ने कहा कि हम अल्लाह के जलाल को देख रहे हैं। यकीनन हम अल्लाह के जलाल को देख रहे हैं। हम तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि परवरदिगार हमको तेरा जमाल दिखा दे, तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। हमको अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करना है, या अल्लाह आप रहमान और रहीम है, आपके पास 70 माओं की मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत है, आपके हबीब रहमतुल आलमीन है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला रहम फरमा दे। अल्लाह इन वबाओं को, इन वायरसेस को अल्लाह ख़त्म कर दे, क्योंकि अल्लाह ज़मीन व आसमान का खालिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और अल्लाह ही से हम रुजू करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हम तमाम को, सारे आलम को, हमारे मुल्क को, हमारे रियासतों को अल्लाह सुब्हाना व तआला इस वायरस से हमको निजात दिलाए। और ये उसी वक्त होगा मेरे अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों जब हम घर में रहें।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।